Okay, so probably can you switch on your camera for some time? You want me to switch on the camera? Yeah, for some time, Okay, no problem. if you are comfortable. Yeah, that's okay. Okay. So, yes. So the last time we were discussing about Srila Prabhupada's preparing for first initiations and how he had settled down in 26th Avenue, um, and how the initial activities of 26th Avenue took place. Some of his followers started gathering, and how he preached in 26th Avenue, and then how the early followers of Prabhupada decorated the 26th Avenue ISKCON Center just to please Prabhupada. And Prabhupada used to give sufficient individual time to each and everyone, and how we also discussed about how, like, the Monday, Wednesday, Friday Bhagavad Gita classes by Prabhupada started filling up, like the room, the hall, the temple hall started filling up. And how everyone wanted to serve Srila Prabhupada. We discussed about the drunkard who just bumped into the temple hall and then went inside the washroom and kept some toiletries and things like that. So Prabhupada, amazingly, how he used to Krishna is everything and connect everything with Krishna. And then we also discussed that when Prabhupada saw the temple hall was decorated, he explained each and everything to his followers and to his friends, and how prasadam was cooked, a meal was cooked, a feast was cooked for the visitors and for the regular followers and attendees of Prabhupada. And we were discussing how Keith and Valley were principally helping Prabhupada in preaching. So that's where I think, and then the last point we discussed the last time was how Keith expressed his desire to get initiated by Prabhupada. And that's when Srila Prabhupada thought of introducing initiations in ISKCON. And he told Keith to make an announcement that we'll just make an announcement that we'll very soon have initiations. And go and get some beads to prepare the some wooden beads to prepare the japamalas. And then how lastly we discussed that Keith had left for the market to get some wooden beads, and then he bought the beads, and then he started stringing the beads into the threads, and that's how japamalas were made. So to continue with it, so japamalas were made. Keith bought the beads and strung the beads into the thread and made the japamalas ready. And so everyone, when they heard the announcement that initiations are going to happen, so some people didn't even know what initiation meant. And some people who had visited India from the early followers of Prabhupada actually knew that initiation means a serious, deep commitment. And this is like, अगर initiation लेंगे तो थोड़ा बंद जाएंगे, थोड़ा bound up हो जाएंगे. So some people were skeptical, some were completely unknown to the thing, and some were like, हाँ हो रहा है तो ले लेंगे, उसमें क्या है, सब लेंगे तो हम भी ले लेंगे. So everyone had different perceptions about initiation. But to speak generally, everyone somewhere in their heart
knew that initiation means getting a deep commitment, कि अभी तक तो ये चल रहा था, हम आके feast कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, but that initiation are like will bind us deeply. Okay, so this is what was happening. Then then उसके डे आफ्टर जब ये अनाउंसमेंट हुई, उसके डे आफ्टर फर्स्ट इनिशिएशंस हुए, तो प्रभुपाद prepared a big yagya kund and did a yagya, and some of his followers like Keith was during the first round of initiations. Keith was somehow hospitalized, so Keith could not get initiated in the first round, but कुछ disciples ने initiation लिया, और बाकी जो followers थे उन्होंने सोचा कि पहले दूसरों को लेने दो, first let the few people take initiation and then we'll see what it is, and then if we like it, we'll also in the second round we'll also take the initiation. So I would not go into detail कि किस disciple को क्या नाम मिला, because we are running short of time and I have to cover a lot. So I will just generally take the names of few disciples. तो कीथ, तो जब सेकेंड राउंड हुआ तो कीथ became कीर्तानंद स्वामी, Steve became Satsvarupa Maharaj, Mike and Satsvarupa Das at that time. Later on he became Satsvarupa Das Goswami Maharaj, जिन्होंने श्रीला प्रभुपाद लीलामृत actually he wrote, जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं, and Mike and Jan, two of Prabhupada's followers, became Mukunda and Janaki. तो बहुत सारे लोगों को पता है, हो गया अभी दीक्षा हो गया, तो दीक्षा के फर्स्ट नियम बताए प्रभुपाद ने कि लोगों के बीच में डिस्कशन स्टार्टेड कि अभी कितने राउंड चैंट करने होंगे. सम पीपल वर सेइंग कि स्वामी जी ऑलवेज मेंशन दैट कि अरे his spiritual master used to say कि जब तक कोई 64 राउंड्स नहीं करता तब तक he is not to be considered a devotee. तो हमको क्या 64 राउंड्स करना होगा, क्या करना होगा, उसमें तो पूरा दिन रहेगा, ये हो ऐसे करके सब डिस्कशंस वर गोइंग ऑन. तो कोई बोला नहीं 32 भी, मुझे लगता है स्वामी जी 64 नहीं बोलेंगे, 32 बोलेंगे. तो सब देख के प्रभुपाद ने सिचुएशन को एनालाइज किया. देन प्रभुपाद सेड मिनिमम 16 rounds of chanting the Hare Krishna Maha Mantra and not following the 4 regulative principles, which means no illicit sex, no gambling, no intoxication, and what was the fourth one? No illicit sex, no gambling, no intoxication, and no meat eating. Yeah, no meat eating. तो सब हिल गए पूरा, बिकॉज दिस इज, वो उनकी लाइफ थी, जो प्रभुपाद ने नहीं करने को बोला वो उनकी लाइफ थी. तो एवरीवन वाज लाइक शुक कि हमने ऐसे इट्स लाइक अ बिग कमिटमेंट है, तो पूरा हमारा लाइक सिविलाइजेशन लाइफ पूरा हिला दिया प्रभुपाद ने. बट इनिशिएशन, फर्स्ट इनिशिएशन हो गया, एंड देन हवन की वजह से रूम पूरा स्मोकी हो गया था. बट फर्स्ट इनिशिएशन के बाद सब लोग हैड प्रसादम एंड दे लेफ्ट, एंड देन किसी ने कुछ हेल्प भी नहीं किया, बेचारे इतने ओवरवेल्म हो गए थे. फर्स्ट इनिशिएशन के बाद ओवरवेल्म हो गए थे सब लोग कि किसी ने स्वामी जी को सब क्लीन अप करने में हेल्प भी नहीं किया, सब चले गए प्रसादम लेके यज्ञ वज्ञ होने के बाद. एंड स्वामी जी लाइक श्रीला प्रभुपाद वाज हिमसेल्फ क्लीनिंग एवरीथिंग. तो उनमें से एक डिसाइपल्स का बीड्स, जब इनिशिएशन हो रहा था, एक डिसाइपल्स के बीड्स लेके प्रभुपाद ने खुद 16 राउंड चैंट करके उसको दिया, एंड एक को नाम दिया, ऐसे करके हरि नाम दीक्षा हुआ. तो दिस इज हाउ फर्स्ट इनिशिएशन हैपेंस. उसके बाद उसके डे आफ्टर फर्स्ट मैरिज कंडक्ट किया प्रभुपाद ने between Mike and Jan, who were named as Mukunda and Janaki.
तो मुकुंद एंड जानकी का मैरिज कंडक्ट किया प्रभुपाद ने. प्रभुपाद ने लिटरली लाइक the Vedic mantras that are chanted during the marriage, Prabhupada did like जो priest का एक जो रोल होता है वो प्रभुपाद ने किया. तो जानकी के साइड से उनकी बहन आई थी for attending the wedding, and मुकुंद के लिए सारे जो अर्ली फॉलोअर्स एंड नाउ डिसाइपल्स थे. तो फिर ऐसे करके वेडिंग हुआ. फर्स्ट वेडिंग कंडक्ट किया जिसमें प्रभुपाद ने प्रीस्ट का रोल जो होता है वो किया. एंड जब जब एक पॉइंट है, जब फर्स्ट इनिशिएशन जब हो रहा था तो कुछ फॉलोअर्स के मन में कुछ डाउट आया कि आज तक तो स्वामी जी बोल रहे थे ऐसे ऐसे, और कि हरे कृष्णा चैंट करना है और प्रसादम लेना है, and अभी ये सब बोल रहे हैं फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स एंड दिस थैंक्स. तो प्रभुपाद का कुछ उनको मतलब जो आज तक बोला और जो अभी बोल रहे हैं वो थोड़ा मैचिंग नहीं लगा उनको. तो वो कुछ जो कीथ के फ्रेंड्स थे, अर्ली फॉलोअर्स, दे वेंट टू कीथ एंड दे सेड कि ऐसे ऐसे. एंड कीथ टोल्ड देम कि कुछ भी अगर डाउट हो ना तो जाके स्वामी जी से पूछो, डायरेक्टली स्वामी जी से बात करो, ऐसा उन्होंने उनको बोला. तो सेकेंड, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें कुछ पता नहीं. एक डिसाइपल ऐसा भी था जिसको इनिशिएशन का कुछ पता नहीं, बट प्रभुपाद के लेक्चर्स वगैरह अटेंड करता था, सब कुछ अटेंड करता था. तो उसने अपनी मदर को जाके पूछा कि यहाँ पे इनिशिएशन मिल रहा है तो मैं ले लूं क्या. तो उसको भी कुछ नहीं मालूम, मदर को भी कुछ नहीं मालूम, तो मदर ने बोला कि ले लो, तो ले ली. तो फिर जो लोग बाकी तभी फर्स्ट राउंड में नहीं लिए थे उन्होंने सेकेंड राउंड में दे टुक द इनिशिएशन. एंड ऐसे करके 2 इनिशिएशन हो गया और एक वेडिंग हो गया. तो तभी जन्माष्टमी के बाद हुआ ये सब. फिर उसके बाद राधाष्टमी आई, तो राधाष्टमी पे भी वैसे सेलिब्रेशंस हुए, क्लासेस हुए और सब किया, फीस्टिंग एंड ऑल दैट. फिर एक दिन प्रभुपाद को एक दिन कीथ को और कीथ के साथ एक और डिसाइपल थे, ब्रह्मानंद प्रभु, जो कुकिंग में हेल्प करते थे. तो उन दोनों को उनको प्रभुपाद ने बोला कि हम अभी से ना सिर्फ जो हमारे जो डिसाइपल्स हैं या जो रेगुलर अटेंडीज है उनके लिए प्रसादम नहीं करेंगे. एटलीस्ट एवरी संडे हम लोग 50 लोगों के लिए विल प्रिपेयर द प्रसादम. तो कीथ सजेस्टेड कि वी शुड कॉल इट संडे लव फीस्ट. तो ऐसे करके पोस्टर्स भी छप गए कि अरे संडे लव फीस्ट होगी, एंड पोस्टर्स भी लगा दिए सब जगह पे. एंड 50 लोगों का खाना बनाया, सब किया. एंड देन इसी टाइम में और भी नए लोग जुड़े जिनमें से प्रभुपाद के संडे फीस्ट का स्टार्टिंग होने से पहले ये जो सब 3-4 सेरेमनीज हुए उसमें कुछ और लोग भी जुड़े 26 एवेन्यू सेंटर के साथ. वन ऑफ देम वाज एलन जिन्सबर्ग. नाउ एलन जिन्सबर्ग क्या था, एलन जिन्सबर्ग उस टाइम पे बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था न्यूयॉर्क एंड अमेरिका, वो सब जगह पे. एंड द फिलोसफी ऑफ एलन जिन्सबर्ग वाज टू get the high uh, transcendental kind of state, transcendental kind of position through the medium of intoxication and through the medium of illicit sex. But Allen Ginsberg का एक प्लस पॉइंट था कि एलन जिन्सबर्ग ना had attended the कुंभ मेला in India once, and तो उसने वहां पे हरे कृष्णा महामंत्र सुना था. तो उसकी फिलॉसफी जो थी, जो मैंने अभी बोला कि ही प्रीच्ड कि आप इंटॉक्सिकेशन करो एंड हैव इलिसिट सेक्स, एंड उसकी वजह से आप को ट्रांसेंडेंटली हाई स्टेट मिलेगा. you'll go above everything, all this materialistic things के ऊपर जाओगे. बट वो अपने कॉन्सर्ट्स में जो भी कॉन्सर्ट्स या प्रोग्राम्स जो भी करते थे उसमें वो हरे कृष्णा महामंत्र का ये भी करते थे, उसका भी एक शो रखते थे या क्या लोग अपने तरीके से प्रचार करते थे.
क्योंकि वो सुने थे। तो जब भी एलन जिन्सबर्ग फर्स्ट टाइम व्हेन ही मेट प्रभुपाद, तो एलन जिन्सबर्ग वाज लाइक he got one harmonium for Prabhupada, एंड पहले ही बार में उन्होंने सेवा भी, मतलब हारमोनियम भी दिया प्रभुपाद को, कुछ सेवा करने की इच्छा भी जताई। एंड देन एक डिसाइपल को प्रभुपाद ने नाम दिया था हयाग्रीव। तो हयाग्रीव प्रभु went to Allen Ginsberg and said कि स्वामी जी का वीजा एक्सपायर हो रहा है। तो अभी तक दो महीने करके उन्होंने एक्सटेंड किया, बट अभी उनको फाइनल वार्निंग है कि इसके आगे वी वोंट एक्सटेंड है। ओके, वी वोंट एक्सटेंड द वीजा बियॉन्ड, नाउ दिस इज द लास्ट टाइम दैट वी हैव एक्सटेंडेड द वीजा, इसके आगे वीजा एक्सटेंड नहीं मिलेगा। तो हयाग्रीव एक्सप्रेस की कुछ आप कर सकते हैं क्या कि स्वामी जी का वीजा के लिए कुछ हेल्प हो जाएगा, अगर आप कुछ इफ यू प्रोवाइड सम लक्ष्मी, वी विल hire one immigration lawyer and then we can see what can be done and things like this. So Alan Ginsberg happily helped and all those things happened and स्वामी जी का वीजा फिर से एक्सटेंड हो गया। एंड देन फिर मुकुंद और जानकी तो वेस्ट कोस्ट चले गए, बिकॉज दे एक्सप्रेस्ड डिजायर कि हमको थोड़ा जाना है, थोड़ा एक्सप्लोर करना है, और उन्होंने इंडिया जाने की भी कभी तो इंडिया जाने की भी उन्होंने डिजायर एक्सप्रेस की। इस तरीके से मुकुंद एंड जानकी वेंट ऑफ टू लाइक सैन फ्रांसिस्को। तो अब उसके बाद क्या हुआ, प्रभुपाद संडे लव फीस्ट भी हो गया। और संडे लव फीस्ट से पहले एक्चुअली जब ये इनिशिएशन के बाद 3-4 प्रोग्राम हुए, राधा अष्टमी हुई, वेडिंग हुई, और जन्माष्टमी के बाद जो इनिशिएशन हुए, जब ये सब अच्छा चल रहा था, तो एक दिन प्रभुपाद ने बोला कि हम we'll just not do Harinam Sankirtan in this room, we'll just go outside for Nagar Sankirtan। तो उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को भेजा कि आप जाओ एक अच्छी सी जगह ढूंढ के आओ, एंड वहां पे कारपेट वारपेट बिछा के थोड़ा तैयारी करो, और थोड़ा संकीर्त लाइक चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र यू स्टार्ट, and then I will come, and all the other disciples and followers and friends will also join. So some of the disciples went also to look for a good place, and टॉम्सकिन स्क्वायर पार्क पे, जो बहुत फेमस, अभी तो टॉम्सकिन स्क्वायर पार्क न्यूयॉर्क में लीला स्थली हो गई है, वहां पे इंस्क्राइब भी किया है कि ये ट्री के नीचे बैठ के प्रभुपाद ने फर्स्ट टाइम हरिनाम संकीर्तन किया था। तो वो डेट थी जिस दिन हुआ था, वो डेट थी जब मैं पढ़ रही थी, तो मैं देखना चाह रही थी कि वो एग्जैक्ट डेट क्या थी। तो एग्जैक्ट डेट थी October 8, 1966। तो ये सब जो इनिशिएशन राधाष्टमी एंड जन्माष्टमी वाले सितंबर अक्टूबर की अगस्त सितंबर की बातें, उसके बाद ये हरिनाम संकीर्तन हुआ। तो जब प्रभुपाद वहाँ पे ही वेंट देयर, वो कुछ डिसाइपल्स पहले से ही चैंटिंग स्टार्ट कर चुके थे, तो वहां पे जो लोग थे, जो बेसिकली जो क्राउड होता है, कुछ एल्डरली, कुछ बच्चे, कुछ यंगस्टर्स, जो बेसिकली पार्क की एक्टिविटीज होती है, वो सब हो रही थी। तो लोग ऐसे बैठ के देख रहे थे कि ये लोग कर क्या रहे हैं, कि मतलब क्या, मतलब क्योंकि लोगों को मालूम था कि ये तो हिप्पीज हैं, लेकिन ये हिप्पीज कर क्या रहे हैं। तो अब बुक में तो अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर से टॉम्सकिन स्क्वायर पार्क का डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि पार्क कैसा दिखता है, कैसा दिखता था, कितना ब्यूटीफुल पार्क था, ये वो सब। but anyway we'll just focus on the main things। तो just फिर जब कुछ टाइम बाद when Prabhupada came there with the rest of his disciples and जो भी followers attendees थे, तो everyone was like waiting कि अभी तो प्रभुपाद हरे कृष्ण महामंत्र शुरू करेंगे। एंड everyone was like कोई कोई
करताल एंड मृदंग वगैरह लेके एवरीवन वाज लाइक दिस वेटिंग कि अभी तो हरिनाम शुरू होगा। बट प्रभुपाद ने मंगलाचरण प्रेयर्स से शुरू किया एंड एवरीवन वाज लाइक ऑल हिज डिसाइपल्स जो पहले से वहां पे कीर्तन कर रहे थे प्रभुपाद के आने से पहले से, जिनको प्रभुपाद ने भेजा था सब तैयारी करने को, स्पॉट देखने को, तो वो हैरान हो गए। दे बिकेम लाइक सरप्राइज कि ये क्या है, आज तक तो हमने सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र सुना था, बट ये उनको नहीं मालूम था कि ये मंगलाचरण प्रेयर्स है। एंड मंगलाचरण प्रेयर्स प्रभुपाद ने इसलिए गाया क्योंकि वो पूरे जो एक पूरे संप्रदाय की जो हमारे जो पहले स्पिरिचुअल मास्टर्स रहे हैं, जो कंटेम्पररी स्पिरिचुअल मास्टर्स है वो तो है ही, बट जो पहले श्रीला प्रभुपाद के पहले जो डिसाइप्लिक सक्सेशन की लाइन रही है, उन सब की मर्सी इन्वोक करने को, कृष्णा की मर्सी इन्वोक करने को, यू नो द टू इन्वोक द मर्सी ऑफ द सिक्स गोस्वामीज। एंड प्रभुपाद वाज लाइक saying the prayer so intensely and with so much feeling कि everyone was like mesmerized, जो देख रहे थे वो भी mesmerized हो गए, और जो प्रभुपाद के फॉलोअर्स डिसाइपल्स थे वो भी mesmerized हो गए। फिर जब प्रभुपाद ने कीर्तन स्टार्ट किया तो प्रभुपाद ने कीर्तन किया एज इफ उधर बैठ के वो साक्षात कृष्ण को पुकार रहे हैं कि कृष्ण यू हैव टू लाइक अपीयर हियर, और वो कृष्णा से प्रे कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मिशन के साथ जोड़े एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो। तो लोग फिर ना वहां पे एक साइड में ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया है कि एक साइड में चार पिलर्स के बीच में कोई यू नो जैसे क्या बोलते हैं उसको, बैंड, ड्रम बैंड होता है ना, जो म्यूजिशियन बैंड, वो अपना कुछ ड्रम्स एंड कुछ इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे थे। तो वो एक शोर साइड में चल रहा था, पर लोग ये एक अलग कॉर्नर में एक अलग ही कुछ चल रहा था एंड लोग बहुत आकर्षित हो रहे थे, जो हर एज के लोग थे वहां पे, तो वो सब बहुत आकर्षित हो रहे थे और जा रहे थे। फिर प्रभुपाद ने जब देखा कि नाउ पीपल हैव गैदर्ड, तो प्रभुपाद gave a slight gave a slight hint to their disciples कि अभी डांस करना शुरू करो। So the disciples started dancing on the tune of Kartal and Harinam, and Prabhupada was constantly chanting and chanting and doing the kirtan. And disciples were thinking कि हाँ अभी थोड़ा नाच लिए, थोड़ी देर बाद उनको लगा बैठने बोलेंगे, बट प्रभुपाद ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड कीर्तन किए जा रहे, बैठने को नहीं बोल रहे। तो सब नाच रहे हैं एंड एक कोई कोई तो ऐसा खो गया था उसमें कि आंखें बंद करके आनंद ले रहा था। एक छोटी सी बच्ची का भी वर्णन आता है कि एक एल्डरली लेडी देख रही थी कि एक दूर से एक छोटी बच्ची आंखें बंद करके आनंद ले रही है हरे कृष्णा कीर्तन का। एंड वो सोच रही थी कि उसको ऐसा क्या, लाइक ऐसा क्या, व्हाट काइंड ऑफ ब्लिस इज शी गेटिंग इन दिस, कि वो आंखें बंद करके एकदम से ऐसे मेस्मराइज होके ऐसे ऐसा बोलते ना मंत्र मुग्ध होके सुन रही है, ऐसा वो देख रही थी। तो ऐसे सब हो रहा था। फिर जब प्रभुपाद ने थोड़े टाइम के बाद जब ये कीर्तन स्टॉप किया, सब लोग रुके, सबको लगा थोड़ा स्पीच देंगे, तो वहां पे भी प्रभुपाद ने फिर लेक्चर दिया। लेक्चर में लाइक एक बहुत पॉपुलर टेप है, उस लेक्चर में प्रभुपाद एक्चुअली आई थिंक दैट tape belongs to the Tompkins Square Park thing only. उसमें प्रभुपाद is explaining the meaning of this transcendental vibration, कि इसका महामंत्र का मीनिंग क्या है, and anyone can chant it anytime, anywhere, anyhow, like इसमें, and the effect of chanting he is explaining। तो ऐसे करके बहुत अच्छा संकीर्तन हुआ, सब हुआ। फिर वहां से आए प्रभुपाद। तो ये टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क वाला जो हरिनाम संकीर्तन है, ये एक्चुअली संडे लव फीस्ट से पहले हुआ। इसके बाद संडे लव फीस्ट का एक दिन
आइडिया आया तो संडे लव फीस्ट हुई। तो लेकिन जब टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क से आए तो जो उनका रेगुलर मंडे वेंसडे फ्राइडे लेक्चर का टाइम होता है वो भी हो रहा था। तो डिसाइपल्स वर थिंकिंग कि और भी लोग लाइक पता नहीं कैसा रिसेप्शन रहा होगा हरिनाम संकीर्तन का, क्योंकि लोग तो मेस्मराइज होके आ तो गए थे, लेकिन जब भी प्रभुपाद स्टार्टेड गिविंग लेक्चर तो फिलोसफी बहुत हाई लगी, तो वो कीर्तन खत्म होने के बाद पार्क से चले गए। बट जब प्रभुपाद ने देखा कि वो टेम्पल के बाहर आए तो वहां पे लगभग कुछ आई थिंक 45 30 to 45 पीपल का एक छोटा सा ग्रुप पहले से ही टेम्पल के बाहर खड़ा था कि कब स्वामी जी आएंगे और टेम्पल का लॉक खोलेंगे। तो उसका कीर्तन का इफेक्ट हो गया था। हालांकि कुछ लोग लेक्चर का फिलोसफी सुन के पहले चले गए थे, बट हो गया था इफेक्ट, इसलिए नए लोग भी आ गए थे, तो प्रभुपाद ने सबको वेलकम किया। एंड देन जो यूजुअल उनका लेक्चर होता है वो हुआ। एंड जब ये एलन जिन्सबर्ग आया तो एलन जिन्सबर्ग को पर्टिकुलरली मेंशन है कि जो स्टोरी है यू नो लॉर्ड चैतन्य एंड चांद काजी, जो पहली बार जो नगर संकीर्तन सिविल डिसोबीडियंस किया था काजी के अगेंस्ट के लॉर्ड चैतन्य ने, वो वाला पास टाइम एलन जिन्सबर्ग को सुनाया था। तो सब लोग कुछ लोग को फिलोसफी बहुत हाई लगती थी, समझ में नहीं आता था, क्योंकि फिलोसफी के लिए एक फिलोसफी हेड से जाके हार्ट में उतरे उसके लिए बहुत एक प्योर लाइफस्टाइल, यू नीड इट एंड थिंग्स लाइक दैट। तो लेकिन सब लोग इस बात से मेस्मराइज हो जाते थे कि स्वामी जी कुछ तो बहुत अच्छा दे रहे हैं, और उनका जो एक ऑरा था, पर्सनालिटी थी, उससे सब मेस्मराइज हो जाते थे। एंड देन मतलब और जिन जो थोड़ा रिसेप्टिवली सुनते थे वो ऑब्वियसली वापस आते थे, जो नहीं कुछ सुन के चले जाते थे, कुछ क्यूरियस होके करते थे, तो ऐसे चलता था। देन प्रभुपाद वन डे थॉट कि अभी नगर संकीर्तन हो गया एंड थिंग्स, दीक्षा भी हो गई एंड मैरिज सेरेमनी भी हो गई, जो कभी सोची नहीं थी। तो अभी शायद जो 1944 में जो बैक टू गॉड एंड मैगजीन स्टार्ट किया था वो अभी करना चाहिए। तो प्रभुपाद gathered his disciples and प्रभुपाद ने उनको एक्सप्रेस किया। तो एक उनके एक डिसाइपल ने बताया कि यहाँ पे कोई लोकली ना एक प्रिंटिंग प्रेस है, एपटेक प्रिंटिंग प्रेस, उसको बेचना चाह रहे हैं, तो वो प्रेस हम खरीद सकते हैं मैगजीन छापने के लिए। तो प्रभुपाद वेरी हैप्पीली, आई थिंक हु वाज इट ब्रह्मानंद प्रभु और सम अदर डिसाइपल, तो उन्होंने एक वैन किराए पे लिया, उसमें वो भी गए और प्रभुपाद को लेके गए, जगह दिखाई। तो जो वो ओनर थे प्रिंटिंग प्रेस के, उनको जाके प्रभुपाद ने समझाया कि दिस इज माय मिशन एंड I need the printing press and things like that। एंड कुछ पता नहीं कुछ इतना अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया, प्रचार किया कि वो 5 मिनट में वो राजी हो गए। तो जो ओनर मैनेजर बोलने लगे कि एक और प्रेस है हमारे पास, सिर्फ ये एक नहीं है, एक और प्रेस है, तो दोनों बेचना है। तो बोले, उन्होंने पूछा, डिसाइपल्स ने पूछा, प्रभुपाद ने पूछा कि कितने में देंगे। तो बोले एक प्रिंटिंग प्रेस $250। तो प्रभुपाद ने फिर और बात किया और समझाया, तो ऐसा कुछ प्रभाव हो गया प्रभुपाद को उनपे कि उन्होंने $250 में दोनों प्रिंटिंग प्रेस दे दिया। एंड देन प्रिंटिंग प्रेस लेके आए, प्रिंटिंग प्रेस इंस्टॉल किया। एंड स्पेशली रामाराया एंड ब्रह्मानंद प्रभु को उन्होंने दिया एडिटिंग का, बिकॉज दे वर लाइक
दे वर लाइक इंग्लिश प्रोफेसर्स, उनका इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड बहुत अच्छा था। एंड रामराय प्रभु वाज लाइक प्रोफेशनल राइटर, तो उन दोनों को सर्विस दिया। एंड ये गोल था कि 100 कॉपीज छापनी है। एंड सो एवरीवन वाज लाइक ऑल ऑफ हिज डिसाइपल्स, उनको कभी पता भी नहीं था कि अपने जो इनबिल्ट नेचुरल स्किल्स होते हैं जिसकी मदद से हम लोग मटेरियली हम लोग अर्न करते हैं, वी अर्न अ लिविंग, उसको हम लोग कृष्णा के सर्विस में भी लगा सकते हैं। तो जो मतलब प्रभुपाद सबको बोलते थे कि डू समथिंग और दी अदर, अगर आपको जितना आ रहा है, जो आ रहा है, लिखो, छापो, कुछ करो, कोई कोई बेच लो, ऐसे डोंट सिट आइडल, कुछ ना कुछ करो, कृष्णा विल ऑलवेज एक्सेप्ट योर एफर्ट। तो ऐसे बोल के उन्होंने 100 कॉपीज छापी। कोई उसको बाइंडिंग कर रहा है, कोई पेपर को एक साथ ऑर्डर में जोड़ रहा है, तो सब ऐसे कर रहे। तो फिर दो डिसाइपल्स साइकिल लेके निकले, और जब तक उन्होंने 100 कॉपीज पूरी बांटी नहीं, दे डिड नॉट कम बैक टू द सेंटर। तो उसका सारांश ये बोला जाता है कि जो भी जितना भी सेवा कर रहा था, जो भी डिसाइपल, एवरीवन न्यू कि हम प्रभुपाद के लिए वी आर डूइंग दिस। एंड प्रभुपाद ऑलवेज यूज्ड टू मोटिवेट एंड एनकरेज देम कि आप ये मत सोचो कि अभी ये कोई खरीदेगा या नहीं, कैसे होगा, क्या होगा। आप बस यू जस्ट प्रिंट, and rest all Krishna will do। तो ऐसे कर करके कॉपी छपी, और डिसाइपल्स भी हैरान हो गए कि लोग एक्चुअली कॉपीज ले रहे हैं, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। बिकॉज उस टाइम तक प्रभुपाद हैड बिकम अ नोन फिगर इन न्यूयॉर्क, एंड न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स छपते थे। एंड कि वो जो टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क पे हुआ था, उसको हरे कृष्णा एक्सप्लोजन बोला गया है। न्यूज़पेपर आर्टिकल में ऐसा आर्टिकल भी आया है कि द हरे कृष्णा एक्सप्लोजन। तो बहुत सारे इंटरव्यूज होते थे, और मतलब रिपोर्टर्स बात करना चाहते थे, और फिर आर्टिकल्स आते थे, तो नॉन फिगर हो गए थे प्रॉपर उस टाइम तक। तो अच्छा एक रिस्पॉन्स, रिसेप्शन अच्छी मिल रही थी बैक टू गॉड एंड मैगजीन को भी। तो Prabhupada was like very happy with his disciples। तो जो डिसाइपल एक एडिटिंग में थे, उनकी सेवा से Prabhupada became very happy। And Prabhupada actually called one of them and said कि I am very happy with your service, so I will gift you my first canto Bhagavatam का 3 वॉल्यूम सेट। तो द डिसाइपल एक्सप्रेस की, अरे मेरे पास इतनी लक्ष्मी नहीं थी, पर आपने गिफ्ट मतलब टू परचेज दैट आई डिडंट हैव सो मच लक्ष्मी, बट यू आर गिफ्टिंग, सो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी डिजायर फुलफिल हो गई। तो प्रभुपाद ने बोला अभी आपका सिर्फ दोनों को बोला, ब्रह्मानंद प्रभु को बोला और राम राय प्रभु को बोला कि अभी आपका सिर्फ एक ही मिशन है कि बैक टू गॉड एंड मैगजीन को इतना फैला दो कि जैसे इतना पॉपुलर कर दो कि जैसे न्यूयॉर्क में जो टाइम्स मैगजीन है, उनको वो स्तर पे बैक टू गॉड एंड मैगजीन भी पहुंच जाए। तो ऐसे करते 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 नेक्स्ट 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 प्रोजेक्ट। तो फिर ये सब हो गया। उसके बाद प्रभुपाद यूज्ड टू ऑलवेज आस्क और that time Prabhupada used to always ask कि मुकुंद एंड जानकी की तरफ से कोई लेटर आया, वो क्या कर रहे हैं, क्या प्रीचिंग एक्टिविटीज कुछ हो रही है सैन फ्रांसिस्को में, क्या है क्या नहीं। तो एक दिन आया, लेटर आया, और लेटर में मुकुंद प्रभु ने लिखा था कि वी 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 हैव लाइक अरेंज्ड रेंटेड रूम फॉर यू हियर, एंड यहाँ पे एक बहुत there's going to be a big community gathering जिसमें सब हिप्पीज आने वाले हैं। तो आप यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आके प्रीचिंग करो। तो सब ऐसे जो जो 26 एवेन्यू के सेंटर वाले डिसाइपल्स थे, उनको तो शौक लग गया कि हाउ विल स्वामी जी गो, हु विल टेक केयर। हम तो सोच रहे थे कि स्वामी जी न्यूयॉर्क से बाहर छोड़ो, कभी लोअर ईस्ट साइड कॉलोनी के बाहर भी नहीं जाएंगे, मतलब
हमें तो लगा था कि अभी हमारे छोटा सा सेंटर है और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी चलेगी, और अगर स्वामी जी नहीं रहेंगे तो हम तो सब छोड़ ही देंगे, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का क्या होगा, ये वो सब ऐसे करके सबके थॉट्स। तो कुछ लोग ना, जो जो एक ग्रुप था प्रभुपाद के डिसाइपल्स का, उनमें से दो लोग हिम्मत करके दे वेंट टू प्रभुपाद एंड दे काइंड ऑफ प्रभुपाद को कन्विंस करने के लिए कि मत जाओ वहां पे, कौन देखभाल करेगा, कैसे रहोगे, क्या है, ये है वो सब। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, प्रभुपाद ग्लैडली एक्सेप्टेड। तो लेटर लेटर के साथ मुकुंद प्रभु ने प्लेन का टिकट भी भेज दिया, तो ग्लैडली एक्सेप्टेड कि नहीं। और ये बात है सैन फ्रांसिस्को का, जनवरी 1967 की बात है ये। तो अभी एक साल के अंदर प्रभुपाद ने कितना मतलब इस्कॉन का जो उनका मिशन है, कितना ही वर्क हार्ड फॉर इट, एंड लुक एट द प्रोग्रेस। जब कृष्णा करते हैं तो मिरेकल ही होता है। एक साल के संघर्ष के बाद ऐसी प्रोग्रेस, कि जब आए थे तो जलदूत में आए थे और अब एक साल बाद जा रहे हैं तो प्लेन की टिकट। तो क्योंकि उनको सहायता करने के लिए अभी उनके कुछ डिसाइपल्स है, अकेले नहीं। अब तक तो जो एक साल का संघर्ष किया, he did that alone, लेकिन अभी वो अकेले नहीं है। तो ऐसे करके, तो फिर बहुत फिर एक डिसाइपल थे प्रभुपाद के, रणछोड़। तो रणछोड़ ऐसा डिसाइड हुआ कि प्रभुपाद के साथ एक डिसाइपल जाएंगे सैन फ्रांसिस्को, वो रणछोड़ होंगे। तो रणछोड़ ने भी अपने लिए एक प्लेन का टिकट लिया, जो भी उनकी जो मटेरियल लाइफ की अर्निंग्स थी उससे, तो वो प्रभुपाद के साथ थे। तो एवरीवन वाज लाइक थिंकिंग कि स्पिरिचुअल लाइफ हमारी क्या होगा, ये सब। तो इसके विषय पे मैं एक बात बोलना चाहूंगी, बट लेट मी फर्स्ट कंप्लीट द पॉइंट्स टू बी कवर्ड टुडे एंड देन आई विल लाइक कि एब्सेंस में कैसे कंटिन्यू होती है स्पिरिचुअल लाइफ, वो मैं थोड़ा उसके ऊपर देना चाहूंगी। बट लेट मी फर्स्ट कंप्लीट जो आज के पॉइंट्स मैंने सोच के रखे। तो उसके बाद सैन फ्रांसिस्को गए, एंड सैन फ्रांसिस्को में एकदम मंत्रा रॉक डांस करके अरेंज कर दिया था। वो जो कम्युनिटी गैदरिंग होने वाली थी, उसमें एक प्रोग्राम अरेंज कर दिया था मुकुंद और जानकी ने, मंत्रा रॉक डांस करके। तो वहां पे प्रभुपाद कीर्तन एंड प्रीचिंग करने वाले हैं। तो प्रभुपाद when he landed in San Francisco, he was astonished to see that more than a group of 50 people had come to, receive him at the airport. एंड प्रभुपाद की फ्लाइट लैंडिंग से एक घंटा पहले ही वो सब लोग आके हरे कृष्णा चैंटिंग चालू कर दिए थे। तो पीपल एट द एयरपोर्ट वर लुकिंग कि ये ग्रुप ऑफ पीपल है कौन, क्या कर रहे हैं, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो they very happily received Prabhupada and वहां पे जाके फिर मंत्रा रॉक डांस में प्रभुपाद ने प्रीचिंग किया, एंड संकीर्तन वगैरह सब हुआ, जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। आई थिंक नेक्स्ट जो लास्ट सेशन होने वाला है उसमें तो मैं समराइज करने वाली हूँ सब जो आज तक के जो अभी 67 से 77, आई एम गोइंग टू समराइज last 10 years in the next thing, and that's why today's session I want to like कुछ ऐसे स्टोरीज हैं, कुछ ऐसे कुछ ऐसी चीजें हैं जो जब मैं खुद प्रभुपाद लीलामृत पढ़ती हूँ, और आज जब मैं डिवोटीज एसोसिएशन से दूर हूँ, जो मेरा जो एसोसिएशन है, जिस टेम्पल से मैं एसोसिएटेड हूँ, जो डिवोटीज को मैं इंडिया से जानती हूँ, उन सब का एब्सेंस है, मुझे खुद की स्पिरिचुअल लाइफ के लिए इतना स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है। somehow I'm surviving, but तो वो सब चीजें हैं। तो आज जब मैं पढ़ रही थी ये पर्टिकुलर सेक्शन में, आई वाज प्रिपेयरिंग, आई वाज थिंकिंग कि जब ये चीज आई, तो उनकी न्यूयॉर्क से जब प्रभुपाद जाने लगे, तो क्या क्या फील हुआ, वो जो फॉलोअर्स और डिसाइपल्स थे, तो ऐसा ही फीलिंग मुझे भी हुआ जब मैं इंडिया से कनाडा आ रही थी। तो but Prabhupada, like everyone became so positive, like handful of
10 to 12 disciples ही थे तभी न्यूयॉर्क में. But everyone became so positive about Prabhupada. सबको प्रभुपाद से कनेक्ट हो गया, एक connect on the level of the heart हो गया. But the thing is, like I was reading, but the thing is कि our spiritual masters, like we definitely do have, whether it is Shiksha Guru or Diksha Guru, we definitely do have our personal relationship, our personal connect with them, personal bond with them, and they also reciprocate with us lovingly. तो लेकिन we forget sometimes, हम इतने ज्यादा उनसे जुड़ जाते हैं कि we forget sometimes unintentionally कि they belong to Krishna. They do not belong to a particular person or a group of people, but they or some particular place. Like प्रभुपाद सिर्फ न्यूयॉर्क में preaching करने के लिए नहीं आए थे, पूरे वर्ल्ड में preaching करने के लिए आए थे प्रभुपाद. तो वो उनके डिसाइपल्स को वो पैंग ऑफ सेपरेशन हो रहे थे. तो वन स्मॉल थिंग ऑफ प्रभुपाद आई वुड लाइक टू मेंशन हियर इज कि प्रभुपाद के एक बहुत ही सीनियर डिसाइपल कपल है, जिनका नाम है भूरिजन प्रभु और जगत तारिणी माता जी. भूरिजन प्रभु एंड जगत तारिणी माता जी. ये मैंने पढ़ा नहीं एक्चुअली, ये मैंने एक लेक्चर में सुना था मेरे शिक्षा गुरु महाराज से. तो वन टाइम प्रभुपाद वाज एट द हाउस ऑफ भूरिजन प्रभु एंड जगत तारिणी माता जी. तो वहां पे प्रभुपाद ने बात करते करते उनको डिजायर एक्सप्रेस किया कि आई वांट टू मेक द होल यूनिवर्स कृष्णा कॉन्शियस. हरे कृष्णा प्रभु, एवरीथिंग ओके? Yeah, I'm listening. So At the same time, I was trying to Google this His Grace Purijan Das. What you just said. yeah, he's like he has very like अच्छा books भी है. मैं उनके books I have read उनका books. I will also tell you the names of the books I have read. तो वो disciple couple को प्रभुपाद ने एक अपना thought express किया कि I want to make the whole world, whole universe Krishna conscious. So much. So my Shiksha Guru was speaking on that. कि such love he has for Krishna कि अगर उनके पास like और resources होते और like और थोड़ा time होता, more than like 12 last 12 years of his life, तो like क्या होता. and उनका मतलब प्रेम देखो, हम अगर सोचेंगे भी तो कुछ टाइम के लिए एंथुसियाज्म में सोचेंगे कि हाँ ये सर्विस करेंगे वो सर्विस करेंगे, बट थोड़े टाइम के बाद वी बिकम नॉर्मल कि चल यार इतना ही हो रहा है, ऐसे ही करते ये वो. बट प्रभुपाद का तीन चीजें, प्रभुपाद का उत्साह, निश्चय और प्रभुपाद का धैर्य. हम लोग के अंदर भी आता है वो somehow. कभी कभी हम लोग बहुत मोटिवेट एंड enthusiastic हो जाते हैं, but after some time we come back to the normal thing. But Prabhupada, you like could hold on to it, the confidence, the enthusiasm, the confidence and the patience. Prabhupada could hold on to it because he had unflinching faith in Krishna. He had unflinching faith in the words of his spiritual master कि अगर मेरी कोई योग्यता नहीं भी है तो भी मतलब मेरे जो गुरु है उनका ये आदेश है तो मुझे यथाशक्ति पूर्ण करना ही है. तो आज like 800 centers है and I don't know, it's like a miracle, like in the span of 12 years like 108 temples. And when I was preparing this list of points now to cover in today's katha and the last katha that we are having next week, so I was like I read and I was like 5,000 disciples in 12 years.
the last 12 years of his life. 5,000 disciples all over the world, and more than like more than 80 publications, that too voluminous publications, multiple volume के publications, and in मैकमिलियन का भगवत गीता किस तरह से पब्लिश हुआ, उसके पीछे भी शॉर्ट स्टोरी है कि पहले मैकमिलियन ने मना कर दिया था कि हम तो मना नहीं किया था, उन्होंने ये बोला था कि हम आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको हम कट शॉर्ट करेंगे, भगवत गीता का जो मैन्युस्क्रिप्ट है we'll just cut short it to 400 पेजेस, तो हम तो खाली 400 पेजेस से छापेंगे। और छापने से भी पहले हमको ये क्योंकि मैकमिलन बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस था वेस्ट का, तो हमको ये प्रूफ चाहिए कि आपका जो जो भी पब्लिकेशन होता है उसकी रीडिंग ऑडियंस अच्छी है। तो प्रभुपाद ने 2 डिसाइपल्स को ऑफिस में भेजा, एंड देन उनको अपना सारा काम दिखाया कि आज तक हमने ये पब्लिश किया है, हमारा ये प्रीचिंग है और ऐसे ऐसे सेंटर है। तो जब प्रभुपाद के उससे एक्चुअली इफेक्ट होके मैकमिलन ने बाद में पहले तो आई थिंक नहीं नहीं बोल के 400 पर ही रुके थे, बाद में आई थिंक ऐसा कुछ हुआ था जो मैं अब जाके पढ़ूंगी, तो उसके बाद मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्या हुआ था, बट उसके बाद मैकमिलन ने बोला कि हम आपको विल हेल्प यू इन पब्लिशिंग द 1972 एडिशन ऑफ भगवद गीता। तो सो मच भी लाइक जो भी आज कवर नहीं हो रहा है वो नेक्स्ट टाइम में कवर होगा नेक्स्ट सेशन, लाइक बट सो मच एफर्ट, सो मच क्या बोलूं उसको मैं, लाइक ही हैज वर्क टायरलेसली ही हैज वर्क फॉर कृष्णा एंड फॉर अस। एंड एक चीज है जो मैं बोलना चाहती थी एक पॉइंट पे कि वो सेपरेशन वाली चीज, तो जब जब डिसाइपल्स ने पूछा तो प्रभुपाद ने बोला कि मेक श्योर, मैं कुछ ही हफ्तों के लिए जा रहा हूँ, आई विल बी बैक, ओके, बट मेरे एब्सेंस में सब काम चलते रहना चाहिए, नथिंग शुड लाइक स्टॉप। तो तो मैं एक बार ऐसे ही कुछ पास टाइम हम भी डिस्कस कर रहे थे, जब मैं लोकल कॉन्ग्रीगेशन में जाती थी मुंबई में, जहाँ पे मेरे शिक्षा गुरु आते थे, तो उन्होंने एक चीज बोली थी कि प्रभुपाद के जो अर्ली डिसाइपल्स है ना, जो अभी लाइक जो अभी लेट 70s अर्ली 80s में लाइक फुल मतलब एजेड हो गए हैं, तो उनका ये जो एकदम ही सीनियर डिसाइपल्स है प्रभुपाद के, उनका ये कहना है, जो वो अपना एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड करते हैं प्रभुपाद के साथ, उनका ये कहना है कि इतने सालों तक अगर हमें भक्ति करने के लिए किसी चीज ने बांध के रखा है ना, तो वो जो एक प्रभुपाद की प्लीजिंग स्माइल थी ना, जो हमारे सर्विसेज से जब भी वो खुश होते थे, तो वो जो प्लीजिंग स्माइल देते थे ना, वो स्माइल देख के हमको मिलता था, शक्ति मिलती थी कि हम और करें, हम और करें, हम और करें। बट उस एक चीज ने हमें भी डर लगता था कि जब प्रभुपाद ने नहीं होंगे प्रभुपाद, जब क्योंकि प्रभुपाद मल्टीपल टाइम्स प्रभुपाद हैड एक्सप्रेस्ड कि आई एम एन ओल्ड मैन, और यू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी उनके और डिसाइपल्स बनते रहे अक्रॉस द globe, take up the responsibilities, form a governing body commission, and मतलब वो इतना ज्यादा टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करना और सब कुछ इन डिटेल देखना was not possible, क्योंकि उनकी हेल्थ भी ये होती रहती थी। तो we'll see later on in the like 1975 I think was the time when governing GBC was started। तो वो टाइम था, तो उन डिसाइपल्स का ये कहना था कि वो स्माइल आज प्रभुपाद एक्चुअली फिजिकल प्रेजेंस नहीं है प्रभुपाद की, बट वो स्माइल को आज भी याद करते हैं हम, तो वो स्माइल ने आज भी हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस में रखा हुआ है कि
you know how much the Guru is pleased when we serve his desire, when we serve his mission. तो आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग, मेरी अभी तक दीक्षा नहीं हुई है और आई एम एस्पायरिंग टू टेक दीक्षा फ्रॉम हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज। तो मैं जब भी मेरी आज प्रसादम के बारे में मैं पढ़ रही थी कि जो अर्ली फॉलोवर्स थे उनको प्रसादम इतना अच्छा लगता था कि वो बोलते थे कि प्रसादम खाने के लिए ही सही हमको जिंदगी भर भक्ति में रखो। कृष्ण से ऐसी प्रार्थना करते थे कि हम आगे प्रसादम खा सके, क्योंकि पूरा हफ्ता बेचारे उनके लिए वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑस्टेरिटी हो जाती थी, सेंस कंट्रोल करना कि नो इंटॉक्सिकेशन, नो illicit सेक्स एंड ऑल दैट। तो वो लोग सोचते थे कि संडे को जाके वील गेट चार्ज अप प्रसादम खा के। तो बहुत सारे डिवोटीज ऐसे कृष्णा को इनोसेंटली प्रे भी करते थे कि कृष्णा प्लीज कीप मी इन योर स्पिरिचुअल लाइफ, क्योंकि हमको ये टेस्टी प्रसादम खाने को मिले एवरी वीक। तो मतलब और इस्कॉन बुलेट्स तो बहुत फेमस गुलाब जामुन बना के रखते थे एंड एवरीबॉडी यूज्ड टू लाइक इट, तो प्रभुपाद यूज्ड टू कॉल इट इस्कॉन बुलेट्स। तो प्रभुपाद ऐसा सोचते थे कि ये बुलेट्स ना अंदर जाके कृष्ण भक्ति पैदा करेंगी। क्योंकि वॉट एवर ही used to cook, Prabhupada used to cook, he used to offer to the Lord because everything used to turn prasadam because of that. तो ये sweet bullets like ISKCON bullets जाके भक्ति का जागेंगी, कृष्ण प्रेम जगाएंगी लोगों के हृदय में। जो फिलॉसफी के रास्ते नहीं आ पा रहे वो प्रसादन के रास्ते भक्ति से जुड़ेंगे। तो ऐसा प्रभुपाद का मानना था। तो प्रभुपाद ऑलवेज यूज्ड टू, खाना तो होता ही था 50 लोगों का, ये जो भी है खाना तो हमेशा होता था, बट एक जार रहता था प्रभुपाद के पास जिसमें वो गुलाब जामुन बना के हमेशा रखते थे और जिसको आना है जब भी आना है आके खाओ, इरिस्पेक्टिव ऑफ मंडे वेंसडे फ्राइडे का क्लासेस है कि नहीं। जो प्रभुपाद से मिलने आता था जिसको जितना खाना है खाओ, तो वो एक हमेशा बड़ा सा जार हमेशा रहता था। तो मैं भी सोच रही थी कि मेरे को भी याद आ रही थी, तो मुझे उनसे बहुत जुड़ाव है और ये बात मैंने मेरे शिक्षा गुरु से भी एक्सप्रेस की है कि मेरी दीक्षा भले राधानाथ स्वामी महाराज से हो जाए, उन राधानाथ स्वामी महाराज के प्रति भी मेरे हृदय में बहुत आदर है, रिस्पेक्ट है, सब कुछ है बहुत, क्योंकि उनके बुक्स मैंने जब पढ़े उनके बुक्स से सबसे ज्यादा कनेक्ट हुई मैं। तो मैंने उनको ये बोला, बट मैंने अपने शिक्षा गुरु को एक चीज बोली कि प्रभु जी, मेरी दीक्षा चाहे महाराज से हो या चाहे किसी भी और सीनियर डिवोटी से हो, जो भी हो, जब एक गुरु वर्ड आएगा तो आपका ही नाम आएगा, आपका ही ध्यान आएगा मुझे, क्योंकि आप ही मेरे गुरु हो जिसकी वजह से मुझे कृष्ण मिले। मैं कृष्ण के बारे में जानती तो थी, जा, जानकारी तो मुझे थी कृष्ण के बारे में पढ़ के सुन के, जब मैं आपसे मिली कुछ टाइम बाद तो मुझे जानकारी थी, बट कृष्ण से मिली आपकी वजह से। और मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी वर्ड्स में, बट मेरे और उनके बीच में भी बहुत एक अफेक्शन है, प्यार है। और मैं उनको हमेशा कहती हूँ, उन्होंने बहुत सर्विस की, लाइक 35 years ऑफ ब्रह्मचारी आश्रम, एंड उनको एक राधानाथ स्वामी महाराज ने एक बार सेवा दी थी कि चौपाटी टेम्पल के पास एक ऑर्फनेज था बहुत पहले, शुरू शुरू में जब चौपाटी टेम्पल नया बना था, तो उसके जो 60 बच्चे थे, तो वो राधा गोपीनाथ मंदिर में ही रहते थे 24/7 वो बच्चे। तो बच्चों की देख रेख करने का, बच्चों का पूरा मतलब ड्यूटी संभालने का जैसे पेरेंट्स करते हैं, वो 60 बच्चों को, 60 बच्चे वो थे, लड़के थे, तो उनका सारा देख रेख का जिम्मा महाराज ने राधा गोपीनाथ प्रभु जी को सौंपा था। और उनमें से बहुत सारे बच्चे अभी बड़े होके अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा वेल सेटल्ड है और दीक्षित भी हैं। तो उनको मैं हमेशा उनको ये बोलती हूँ कि आपके लाइक 60, यू हैव 60 सन बट यू हैव वन डॉटर, प्लीज ऑलवेज रिमेम्बर दैट। मैं उनको हमेशा ये बोलती हूँ। और जब मैं आ रही थी तो मैंने रोते रोते एक वॉइस नोट भेजा था, ऑलमोस्ट लाइक आई वाज
कंट्रोल करके बैठी थी मैं अपने आप को कि मैं रोऊंगी नहीं वॉइस नोट में। तो मैं जब आ रही थी मैंने भी उनको ये बोला कि मुझे मतलब मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे आपको छोड़ के जाना पड़ेगा ऐसे सब। तो मैं एक बात याद करती हूँ कि जब मैं पहली बार मैंने जब होम प्रोग्राम किया था अपने घर पे, दैट वाज स्पेसिफिकली फॉर लेडीज, बिकॉज मैं तभी बहुत यंग थी, लाइक आई वाज इन माय अर्ली 20s। तो मैं अनकंफर्टेबल थी फॉर लाइक प्रभु जी टू जॉइन, तो दैट वाज फॉर ओनली फॉर माता जी एंड उनका। और मैंने किसी को नहीं बताया था, सिर्फ उनको पता था कि आई एम कंडक्टिंग दिस होम प्रोग्राम, मेरे घर पे 8 से 10 माता जी आ रही है एवरी। वो इतने हैप्पी थे कि मैंने लोकल कांग्रेगेशन में किसी को नहीं बताया था कि आई एम डूइंग दिस प्रीचिंग। तो उन्होंने जाके वो जो लोकल कांग्रेगेशन के हमारे सीनियर डिवोटीज थे, एक सीनियर डिवोटी कपल है, उन्होंने जाके उनको बोल दिया कि अंकिता इज डूइंग सो एंड सो, शी इज सर्विंग एंड ऑल दिस थिंग्स। तो he was so happy, so excited. And that when I went there to the congregation, that senior devotee couple came and they blessed me, like सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया कि बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहो बेटा। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा मैंने किसी को एक वर्ड नहीं बोला, ये पता कैसे है इनको कि आई एम डूइंग द, तो सिर्फ उनको पता है क्योंकि उनकी आज्ञा लेके मैंने शुरू किया। जब मेरे पास ऑफर आया था तो एक एक माता जी ने मुझे बोला था कि आप करेंगे क्या, मेरे घर पे आके करेंगे। तो ऐसे मैं आपके घर पे नहीं आ सकती क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है, तो आप मेरे घर पे आ जाओ, मेरे को फिजिकली लाइक मेरे को थोड़ा चलने का प्रॉब्लम है, तो आप मेरे घर पे आओगे तो आई कैन डू दैट बट आई कांट कम टू योर। तो ऐसे करके शुरू हुआ था, तो मैंने उनसे परमिशन ली थी स्टार्ट करने से पहले। तो आई वाज लाइक हु टोल्ड मी, उनसे जब मेरी बात हुई उनसे, तो उन्होंने इतना स्माइल करते हुए बोला कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। मैंने बोला है उनको कि यू आर डूइंग इट बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी। तो लाइक फिर जब मैं एक बार उनसे टेम्पल मिलने गई, और मैं उनसे जाती हूँ तो मैं हमेशा मिलती हूँ, तो मैं उनके पास बैठी हुई थी, तो हम कुछ ऐसे बातचीत कर रहे थे, तो कोई आया उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने बड़े खुशी के साथ बात करते करते मुझे भी उनसे इंट्रोड्यूस करा दिया, जो दूसरे कोई ब्रह्मचारी थे कि अंकिता माता जी है, सो एंड सो एंड बहुत कुछ बोला मेरे बारे में। लास्ट में उन्होंने इतने एक्साइटिंगली बोला ना, इतना स्पार्कल था उनके आईज में। शी इज प्रीचिंग, शी इज ओनली 20 एंड शी इज प्रीचिंग। उनके घर पे हाउस प्रोग्राम शी इज कंडक्टिंग एंड माता जी आर कमिंग एंड the program is flourishing, and इतना स्पार्कल था और ऐसे वाइड स्माइल थी, लाइक यू नो एक्साइटमेंट वाली स्माइल थी। तो उस टाइम मैंने सोचा कि जब भी मुझे आगे भी चांस मिलेगा तो मैं प्रीच करूंगी, मैं कथा करूंगी, और करियर के साथ साथ जो दूसरा अगर कुछ मुझे करना है तो कथा हमेशा कंटिन्यू करनी। तो वो एक चीज अभी मुझे उनकी याद आई कि जब वो प्रभुपाद के स्माइल के बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे अगर कुछ बांध के रखा है तो उन्होंने बांध के रखा है। और अ, मतलब ऐसे ही होता है कि इस टाइप की रिलेशनशिप होती है और इस टाइप का प्यार होता है। तो ऐसा ही प्यार प्रभुपाद के डिसाइपल्स का था उनके लिए, तो उनको भी वही फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन हो रही थी, जो मुझे जो आज मुझे पढ़ के याद आई जब मैं पढ़ रही। तो और एक चीज है, जैसे एक लास्ट थिंग है जो एक बहुत ही पॉपुलर लेक्चर है अमरेंद्र प्रभु का, जिसमें वो एक मेंशन करते हैं कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग आते थे प्रभुपाद के पास। एंड एक टाइम एक व्यक्ति आया प्रभुपाद के पास, उसने प्रभुपाद को एक प्रश्न किया कि वो बहुत पॉपुलर, उस लेक्चर में से निकाली गई बहुत पॉपुलर रील है वो। लेक्चर का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्या है, मैं बाद में शेयर करूंगी ग्रुप में। बट उस व्यक्ति ने प्रश्न किया प्रभुपाद से कि आप हमेशा कृष्ण कृष्ण करते हो, यदि मृत्यु पश्चात आपको पता चला कि कृष्ण नहीं है तो क्या आप तो कितना कुछ कर सकते थे, आप सब कुछ छोड़ के आप कृष्ण का कर रहे हो, आप कितना भोग विलास कर सकते थे, कितना इंद्र तृप्ति कर सकते थे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। तो मतलब आप कितना कुछ कर सकते थे दुनिया में, आपने कुछ नहीं किया, आपने सब छोड़ दिया।
तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमने सब छोड़ दिया, हमने इतना ये नहीं किया भौतिक रूप से शायद। पर आपको मैं प्रश्न पलट के पूछता हूँ, यदि मृत्यु पश्चात आपको पता चले कि उन्होंने बोला कि चलो अगर आप बोलते हो कि हमने इंद्रिय तृप्ति नहीं कर पाए, पहले उन्होंने ये जवाब दिया कि हमने अगर इंद्रिय तृप्ति नहीं भी किया ना तो भी हमने अपना जीवन दे दिया, क्योंकि पूरे जीवन हमने क्या किया है, आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति की है। कभी ये उत्सव, कभी ये उत्सव, कभी वो उत्सव, कभी यहाँ कथा वहां कथा, यहाँ कीर्तन वहां प्रसाद, ऐसे कर करके हमने अपना पूरा जीवन जी लिया और आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति ही किया एक तरह से। अमरेंद्र प्रभु कह रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि उन्होंने ये बोला, उसके बाद प्रभुपाद ने प्रश्न पलट कर ये पूछा कि मैं आपको पूछता हूँ कि हमने तो अपना जीवन ऐसे जी लिया, जो बोला हमने कि हमने यहाँ कथा वहां कीर्तन, पूरे जिंदगी बेसिकली एक तरह से मौज की, अगर आपको मृत्यु पश्चात पता चले कि कृष्ण है, तो आप तो फंस गए। तो अगर हमें पता चलेगा कि कृष्ण है और हमने अगर नहीं किया ये सोच के कि कृष्ण नहीं है, तो अगर हमें साक्षात दर्शन हुए कृष्ण के मृत्यु पश्चात, तो हमें कितना फील होगा यार कि हम कर सकते थे लेकिन हमने नाम जप नहीं किया, हमने विग्रह सेवा नहीं किया। अगर हमने वो किया होता तो हम कृष्ण को प्राप्त करते थे। तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं प्रभुपाद के पास, बहुत सारे पास टाइम्स अमरेंद्र प्रभु ने भी रिकॉर्ड किए हुए हैं, जिनमें से ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, तो आज ये मैंने शेयर किया। तो नेक्स्ट टाइम जो भी रिमेनिंग 10 years है, 67 to 77 including the disappearance pastime, and so next time I will summarize the 10 years. But most importantly, let me tell you, next time I will be focusing on the mood of his entire Leela, specifically the last 12 years, जो हम कब से भी डिस्कस कर रहे हैं। तो मूड और जो उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसके बारे में we'll discuss more, and I will try my best to discuss, लाइक आज जैसे ये प्रश्न पलटने वाला किया, और भी ऐसे 2-3 पास्ट टाइम्स मैंने सुने हैं बहुत जो प्लीजिंग लगे मुझे। सो आई विल आल्सो ट्राई माय बेस्ट टू शेयर नेक्स्ट टाइम। And if you want to say something, if you want to share something, you can go ahead. And next time will be the last session on Prabhupada Lilamrita. एंड उसके बाद हम एवरी सैटरडे 19th of October से मिलेंगे, एंड दैट्स गोइंग टू बी ओनली फॉर अ मंथ, लाइक फॉर द कार्तिक मंथ। उसके बाद आई माई सेल्फ आई एम गोइंग टू गो ऑन अ शॉर्ट ब्रेक, बिकॉज आई वांट टाइम फॉर माय पर्सनल साधना एक्चुअली, क्योंकि ये करने के लिए आई लव इट, आई लव डूइंग कथा, बट इसके लिए मुझे प्रिपरेशन के लिए टाइम देना होता है, तो मुझे थोड़ा सा अपना पर्सनल साधना मिल जाती है। बट दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग कि थोड़ा शॉर्ट ब्रेक लेके फिर आई विल कम विद समथिंग न्यू आफ्टर कार्तिक मास, बट देन या। सो if you want to share something, you want to say something, the floor is all yours. नहीं नहीं, मैं शेयर नहीं करना। I'm thankful to you again for the class, because at least this class inspires me to read more, because you also inspire me to read books. And again, see, again we are not discussing anything materialistic, we are discussing something spiritual, which is great. So and this अभी मैं क्या बोलते हैं, I yesterday heard, I've heard this before also, but again I heard yesterday, so it freshens up कि when you glorify some pure devotee, it cleans your heart, right? And the person who's listening also cleans his heart too. Yeah. So that is what is important, right? Yeah, and personally I also feel like, जैसे आप गुरुजन और प्रभु के बारे में गूगल कर रहे थे, तो मेरा गुरुजन और प्रभु के कुछ लेक्चर्स तो नहीं सुने मैंने, बट मैंने एक बार लाइक राधा गोपीनाथ प्रभु जी से एक्सप्रेस किया था कि मुझे चैंटिंग में बहुत दिक्कत हुई थी, लाइक
1 घंटे में मेरे को 4 राउंड ही हो पाते हैं, मन नहीं लगता चैंटिंग में। बहुत बहुत तभी मतलब बहुत मतलब शुरू के 6-8 महीने में जब उनसे मिलना हुआ, 1 साल की बात होगी शायद। तो मैंने उनको एक्सप्रेस किया कि मेरे को चैंटिंग करने में हेल्प करो, क्योंकि मैं कॉलेज जाती हूँ, मतलब कॉलेज जाती थी तो मैं आई वॉज हार्डली 19, ऑल ऑफ 19 एक्चुअली, जब मैं उनसे मिली। तो कॉलेज में लाइक इंडिया में यहाँ से ज्यादा है, यहाँ पे कोई देखता नहीं कि आप क्या कर रहे हो, एवरीवन इज कंसर्न विद देयर ओन सेल्फ। लेकिन आप इंडिया में अगर ऐसे बीड बैग में हाथ डाल के जप माला करोगे या सिर्फ माला लेके जप करोगे, तो पीपल आर क्या माला लेके बैठी है ना। तो मैं हमेशा काउंटर लेके जाती थी, और मेरे बुक बैग में हमेशा एक बुकलेट होती थी छोटी, कोई भी ऑन द वे टू कृष्णा या मैच लाइफ गिव, ऐसी कोई भी बुकलेट होती थी। तो जब मुझे फ्री टाइम मिलता था, मैं पढ़ती भी थी और चैंटिंग भी करती थी, तो मैं काउंटर पे चैंट करती। तो मेरा कई बार तो मन लग जाता था, लगता था तो हो जाता था 16, नहीं लगता था तो फिर 1 घंटे में 4 ही होते थे। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को आप कुछ ऐसा रेफरेंस दो कि जिससे मैं हरि नाम की ग्लोरीज जान पाऊँ, और ग्लोरीज जानूंगी तो हरिनाम के प्रति शायद मेरी रुचि बढ़ेगी। तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया। अब हरिजन प्रभु के 2 बहुत ही सुंदर बुक्स हैं जो मैंने अब तक रीड की हैं, एंड दे आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। एक तो है जपा बुक, JAPA, जपा बुक, जिसके अंदर ही टॉक्स अबाउट द ग्लोरीज ऑफ जपा, एंड ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द स्टेजेस ऑफ साधना, sadhana bhakti, and he also talks about uh, like he takes like the holy name of Krishna to be a person, and he prays to the holy name to give us the strength and to be so that we are able to chant. और दूसरी भी एक बहुत सुंदर बुक है जो जब हाउस प्रोग्राम करती थी, भगवत गीता कंडक्ट करती थी, तो एक है सरेंडर ऑन टू मी, ओवरव्यू ऑफ भगवत गीता। ये 2 बहुत खूबसूरत बुक्स हैं। इसमें सरेंडर और टू मी में आपको श्लोक वाइज मिलेंगे भूरिजन प्रभु के अंडरस्टैंडिंग गीता के ऊपर। और उसमें उन्होंने प्रभुपाद के पर्पोर्ट्स भी डाले हैं कि हर श्लोक में से ना प्रभुपाद के पर्पोर्ट्स में से एसेंशियल पॉइंट्स लेके डाले हैं कि यहाँ पे ये लिखते हैं प्रभु, और खुद की पर्सनल अंडरस्टैंडिंग भी डाली है। और कुछ चीजें ऐसी जैसे भगवत गीता में अलकनंदा रिवर का मेंशन नहीं है, तो फर्स्ट चैप्टर में मतलब गीता की और महाभारत की थोड़ी बैक स्टोरी भी दी हुई है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है वो। और आई थिंक बुरी जना प्रभु, एज फार एज आई नो, इज associated with the Vrindavan Institute of Higher Education also. उनकी बुक्स वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में भी बहुत रिकमेंड होती है पढ़ने के लिए। सो बहुत सारी बुक्स है बुरीजन प्रभु की, स्पेशली अबाउट प्रभुपाद ऑल्सो। बट हाल फिलहाल में मैंने अगर कुछ पढ़ा है तो मैंने ये दोनों ही पढ़े हैं, और ये दोनों बहुत अच्छे बुक्स हैं। आपको कभी टाइम मिले या कभी परचेस कर सको तो दोनों में से कोई। स्पेसिफिकली मैं आपको पहले बोलूंगी कि आप पहले जपा बुक पढ़ना, क्योंकि भगवत गीता तो यू कैन रीड दी एक्चुअल भगवत गीता एज वेल, और वो तो एज अ रेफरेंस बुक आई यूज सरेंडर ऑन टू मी ओवरव्यू ऑफ भगवत गीता। बट जपा बुक इज लाइक रियली हेल्पफुल। उसके बाद मुझे हरिनाम की थोड़ी और ग्लोरीज समझ में आई, थोड़ा इम्प्रूव हुआ मेरा चैंटिंग। सो एनी which way I think we should end here today, and last session होगा next Sunday, and उसके बाद 2:30 to 3:30 from 19th onwards every Saturday. So next year we are going to sum up and have some uh, point of stories also for Prabhupada. The next Sunday I will see you. Thank you so much for joining. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you.